Morning student, welcome back. Today we are going to discuss about the motion of a charged particle in uniform electric field and in uniform magnetic field. In case of two charged plates of equal and opposite charge density, they will produce uniform electric field in between them. Okay, and this charged particle enters this uniform electric field with v velocity. नाउ इस केस में इस चार्ज पार्टिकल किस पाथ के लॉन्ग मूव करेगा उसको हमें डिस्कस करना है. उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो आप ध्यान दें. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas negatively charged particle experiences force opposite to the electric field. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एज सून एज दिस चार्ज पार्टिकल एंटर्स टू दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय q टाइम्स ऑफ a एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज f इज इक्वल टू qe. अब इस फोर्स के कारण इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ये फोर्स किधर लगेगा? दिस फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स the charged particle accelerates in the direction of force, and we know that force can be expressed as product of mass into acceleration. Okay, so we can express this force as ma and it is equal to qe. Means acceleration produced in the charged particle is given by qe by m. This relation indicates the acceleration produced in the charged particle. मैं इसको ay इसलिए represent कर रहा हूँ because the charged particle accelerates in the direction of force and that direction is along y-axis. जिस तरह से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया exactly उसी तरह से हम इस टॉपिक को भी डिस्कस कर सकते हैं कि this charged particle because of this force it deviates from its path. और जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक पैराबोलिक पाथ कर्व पाथ फॉलो करता है, उसी तरह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण दिस चार्ज पार्टिकल विल आल्सो मूव अलोंग ए कर्व पाथ और उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा और उसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं. तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन. तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर लेते हैं. फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल? दैट इज इक्वल टू v. व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल? इट इज 0 बिकॉज नो फोर्स एक्ट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल? And distance covered along horizontal is equal to x. Okay, and let us consider that it takes t time to cross the region. Hence by using this equation s is equal to ut plus half of at square, we can write x is equal to v into t. यहाँ से हम time taken find out कर सकते हैं. It is equal to x by v. How much time it take to cross the uniform electric field region? It is equal to x by v. Now let us consider the vertical motion. For vertical motion, what values are with us? Initial vertical velocity. Initially it is moving along x-axis. There is no velocity along y-axis. It means initial vertical velocity is 0. Acceleration along vertical direction जो हमने find out कर रखा है, it is equal to qe by m. Okay, and distance covered along vertical direction, यहाँ पर ये curved path follow करेगा while it moves out of the uniform electric field region. It covers some vertical distance and let the distance covered be equal to y. तो vertical distance covered is equal to y. ये vertical distance वो कितने time में cover कर रहा है? In t time. So from here we can write again by using the same relation s is equal to ut plus half of at square. Distance covered is equal to y and the initial velocity is 0. Acceleration is equal to qe by m and t square where t is equal to x by v. तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ x by v होल स्क्वायर. अगर इस रिलेशन को हम चेक करें तो ये जो रिलेशन है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2m v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. मीन्स दिस रिलेशन क्लियरली इंडिकेट दैट
y is directly proportional to x square. Parabolic equation है. It means the charged particle will move along a parabolic path. And in this way we can discuss about the motion of a charged particle. यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा है? इट विल मूव अलोंग ए पैराबोलिक पाथ, एक कर्व पाथ को फॉलो करेगा. एंड जैसे ही ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर निकलेगा, आफ्टर दैट इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. उसके बाद वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एरोज. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, व्हेन वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय क्रॉस साइन, इट रिप्रेजेंट इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. और अगर एरो इनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी टेल हमें नजर आ रही है, एंड दैट टेल अपीयर्स इन द शेप ऑफ क्रॉस. In case when uniform magnetic field is in outward direction, अगर इन्हीं एरोज के डायरेक्शन को हम बाहर की तरफ कर ले तो हमें एक टिप नजर आएगा, एंड दैट टिप appears in the shape of a dot. Dot represent outward magnetic field. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के ये तीन तरीके हैं, इन द प्लेन, इनवर्ड डायरेक्शन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन. नाउ लेट अस कंसीडर दैट the applied uniform magnetic field is in inward direction. This represent that magnetic field is in inward direction, and a charged particle q enters this uniform magnetic field with v velocity. In first video हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय q vb sin of theta. हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. F इज इक्वल टू Q V क्रॉस V, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल. यानी कि हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हुए फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, वेयर एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अलोंग द plane of the board in this direction. Angle between them is 90. अगर हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखें तो we can write F is equal to Q VB sin of 90, and sin of 90 is equal to 1. Okay, means the force is equal to Q VB. इसी टॉपिक को डिस्कस करते समय हमने यहाँ पर बात की थी कि फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, राइट हैंड screw rule. In case when V and B they are perpendicular to each other, वहां पर हम Fleming left hand rule भी यूज कर सकते हैं. As per our diagram, V and B they are perpendicular to each other. B is in inward direction and V is along this direction. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90. तो हम फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं by using Fleming left hand rule. According to Fleming left hand rule, this finger indicates the direction of magnetic field. This finger indicates the direction, yani middle finger indicates the direction of motion of the charged particle, then thumb points in the direction of force. As per our figure, magnetic field is in inward direction and motion of the charged particle is along this direction. Thumb is pointing in upward direction. Means जैसे ही ये charged particle uniform magnetic field में enter करेगा, it will experience force in upward direction, and that force acts perpendicular to the velocity. यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस फोर्स के कारण द चार्ज पार्टिकल एक पाथ को, कर्व पाथ को फॉलो करेगा. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप ध्यान दें कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फोर्स का डायरेक्शन दैट विल रिमेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वहां फोर्स का डायरेक्शन सेम था, लेकिन यहाँ फोर्स का डायरेक्शन रेगुलरली चेंज हो रहा है विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल कर्व पाथ फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, अब इस पॉइंट पर आप ध्यान दें कि इस केस में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अपवर्ड है. इट मींस in such case it will experience force in this direction. Means force always acts perpendicular to the velocity component. Okay,
यानी कि वेलोसिटी के हमेशा ये परपेंडिकुलर लग रहा है, और ये जो पार्टिकल है यानी कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर किस तरह के मोशन के केस में होगा, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी इस केस में चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ओके, मींस दिस फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि द मैग्नेटिक फोर्स इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, and magnetic force is equal to qvb and it is equal to mv square by r। यहां से इसको अगर हम सॉल्व करें, v एक v से एक v कैंसिल, फ्रॉम हियर वी कैन राइट r is equal to mv upon qb। this relation indicates the radius of the circular path followed by the charge particle। as per our diagram, as per concept, force always acts perpendicular to the velocity, और वो उसी केस में पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा हो। इसका मतलब ये जो फोर्स है इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए फोर्स चाहिए, और इस केस में वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड हेंस द चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय mv अपॉन qb। ओके, नाउ इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए टाइम इज इक्वल टू, अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक सर्कुलर रिवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट इज इक्वल टू 2 pi r। ओके, एंड ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विद v वेलोसिटी, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन, दैट इज 2 pi r अपॉन v। फ्रॉम हियर वी कैन राइट t इज इक्वल टू 2 pi r। अब यहां पर ये जो रिलेशन है, यहां से आप चेक कर सकते हैं कि r by v की वैल्यू किसके इक्वल है, इस v को इधर लाओ तो r by v मिल जाएगा, यानी इस r by v को हम रिप्लेस कर देंगे m by qb, मींस वी कैन राइट इट एज 2 pi m अपॉन qb। ओके, तो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू qb अपॉन 2 pi m। ओके, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ सर्कुलर रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द चार्ज पार्टिकल पर सेकेंड, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस रिलेशन। अब एक बार इन तीनों रिलेशंस को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों को एनालाइज करते हैं। तो यहां पर आप चेक करें दिस रिलेशन मास, इस रिलेशन के अंदर मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल ये भी कांस्टेंट है, एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट है। अब आप ध्यान देना कि अगर हम रेडियस की बात करें तो दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर ये चार्ज पार्टिकल लार्जर वेलोसिटी से एंटर करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इन दैट केस इट विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ लार्जर रेडियस, मींस अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सर्कुलर पाथ की रेडियस भी ज्यादा होगी। ये रिलेशन उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन के अंदर m मास इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट मींस टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज and even frequency of circulating charge, it is independent of radius and velocity। ना तो ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से एंटर करे, द टाइम पीरियड ऑफ दैट सर्कुलेटिंग चार्ज विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल विल रिमेन सेम। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऑब्लिक डायरेक्शन में, मींस मेकिंग सम एंगल विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो एंटर करता है, उस केस में उसका मोशन किस तरह का होगा। नाउ लेट अस कंसीडर दैट ए चार्ज q एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद v वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा। रेड एरोज के थ्रू हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस चार्ज पार्टिकल इट मेक्स थीटा एंगल विद द uniform magnetic field. In such case, we can resolve this velocity into two components. Along x-axis, the component will be equal to v cos theta, and along y-axis, the component will be equal to
V sine of theta. Okay, and as we know that the charged particle when enters in the uniform magnetic field, it experiences force, and that force is given by Q VB sine of theta. ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो यहां पर आप ध्यान देना कि for V1 velocity, now let us check how much force it will experience. We know that F1 is equal to product of the charge, velocity, magnetic field and angle between them. अब आप ध्यान देना V1 is along the direction of magnetic field, angle between them is 0 and sine of 0 is 0, means the force experienced by charged particle because of this component of the velocity is 0. Now let us check how much force the charged particle experienced due to V2 component. Now for V2 component, the is given by same relation, that is product of the charge, velocity, magnetic field and sine of angle between velocity component and magnetic field, and which is equal to 90, and sine of 90 is equal to 1, means the charged particle will experience force and it is equal to Q V2B. Okay, and in this case, as magnetic field and velocity vector, they are right angle to each other. In such case, direction of this force can be determined by using Fleming left hand rule. Now according to Fleming left hand rule, index finger it indicates the direction of magnetic field, middle finger it indicates the direction of, we have to keep this finger in the direction of motion of the charged particle, then thumb points in the direction of force experienced by the charged particle. Now as per our diagram, this uniform magnetic field is along the plane of the board, along this direction, yani along x-axis, and charged particle is moving along y-axis. Thumb is pointing in inward direction. Thumb is pointing in inward direction का मतलब है इस केस में इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग नेगेटिव z एक्सिस. अगर हम एक्सिस की बात करें, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, बट फोर्स इज पॉइंटिंग इन as force is acting in inward direction, means it is along the negative z axis. यहाँ पर डायरेक्शन हम मार्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन. इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन F2. जो फोर्स है वो किधर है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड. ओके, ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ. जैसा कि हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है, मींस दिस फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, means Q V2B it is equal to m v square by r, means यहाँ पर जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कौन सा है, V2, क्योंकि V2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण इस पर फोर्स लग रहा है और वही उसी वेलोसिटी से वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. ओके, फ्रॉम हियर वी कैन राइट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू m v2 अपॉन qb. ओके, आगे का जो पार्ट है हमारा लगभग सेम है. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल. अब आप ध्यान दें कि टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v2, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 पाई m अपॉन qb, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया. तो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज. फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb अपॉन 2 पाई m. ओके, टाइम पीरियड and frequency, they are independent of velocity and they are also independent of radius of circular path followed by the charged particle. अब आप ध्यान देना कि इस फोर्स के कारण, because of this force, the charged particle will move along a circular path. क्योंकि ये जो velocity component है ऊपर की तरफ है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसके कारण ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. अगर वेलोसिटी का ये कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ v2 वेलोसिटी होती, तो ये चार्ज पार्टिकल उसी पोजीशन पर एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता. बट बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के साथ साथ ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, एंड दैट टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ. मींस इस केस में द चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग ए हेलिकल पाथ. ओके, मतलब वो एक हेलिकल पाथ फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा. अब यहां पर आप ध्यान देना, ये जो हेलिकल पाथ वो फॉलो कर रहा है, दैट हेलिकल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ is covered with v1 velocity, यानी इस वेलोसिटी से वो हॉरिजॉन्टल पाथ को कवर कर रहा है. अगर जीरो होता उस केस में ये चार्ज पार्टिकल उसी पोजीशन पर एक सर्कुलर पाथ लगातार फॉलो करता रहता.
with this time period or frequency. But because of this horizontal velocity, it also moves forward. अब अगर हम पिच ऑफ हेलिक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्रू है, ओके। अब इस स्क्रू को एक बार कंप्लीट रोटेट, जैसे मान लेते हैं ये सरस है, इस स्क्रू को एक बार कंप्लीट रोटेट करने से ये कितना आगे बढ़ रहा है, दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच, ओके। तो यहां पर इस हेलिकल पाथ की जो पिच है, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन वन सर्कुलर रोटेशन। अब यहां पर डिस्टेंस कवर्ड मान लेता है कि एक सर्कुलर रोटेशन में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके। ये डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है, विद v1 वेलोसिटी। कितने टाइम में कवर कर रहा है, विद t टाइम। इट मींस पिच ऑफ द हेलिक्स इज इक्वल टू v1 व्हिच इज इक्वल टू v cos थीटा एंड t व्हिच इज इक्वल टू 2 pi m upon qb, ओके। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पिच ऑफ द हेलिक्स। यहां पर भी अगर हम बात करें, यहां पर v2 को हमने चेंज नहीं किया, हम चाहें तो इस v2 को मेंशन कर सकते हैं एज v sin थीटा, ओके। तो हम इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय m v sin ऑफ थीटा अपॉन qb, ओके। तो यहां पर जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इन केस व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सच केस इट विल मूव अलोंग ए पैराबोलिक पाथ, एक कर्व पाथ वो फॉलो करेगा। वहां पर कर्व पाथ फॉलो करने के साथ साथ, जैसे हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड था, तो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है और वो एक कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा, आफ्टर दैट इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। यहां पर फोर्स का डायरेक्शन सेम था, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के बावजूद भी फोर्स का डायरेक्शन सेम था। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड सच टाइप ऑफ फोर्स कैन नेवर चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये इस तरह का जो फोर्स है वो फोर्स कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, एंड सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्सेज। मींस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, जैसे कि फोर्स लगेगा, लेकिन वेलोसिटी विल रिमेन सेम, ओनली डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी चेंजेस। अगर आपसे पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से चेंज होगी व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बात की जा रही है काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, वेयर v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी and kinetic energy is a scalar quantity, and we know that in uniform magnetic field velocity will remain same, magnitude of the velocity will remain same, means kinetic energy of that charge particle, force लग रहा है लेकिन फिर भी kinetic energy same रहेगी, because that force is acting perpendicular to the velocity at all the places, and it can change only direction of the velocity, not its magnitude. होप दैट कि ये तीनों टॉपिक जो हमने डिस्कस किए वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।